Hello everyone, it is the time when your study mode is switched on and almost everyone is after your life saying, "Pad le beta, pad le." And you feel like the weight of the entire world is resting on your shoulders. It's not the load that breaks you down, it's the way you carry it. Effort is important, but knowing where to make the effort makes all the difference. And to shed that weight off of your shoulders, we are here with another fantastic trick. And that's cardio. Ma'am, gym? No ma'am, remember that trick by Dr. Christine Pruitt? Oh yes, that. To compare the acidic and basic strength of different compounds. Right ma'am, cardio. Where C stands for charge, A stands for atom, R stands for resonance, DI stands for dipole induction and O stands for orbital. तो डिटेल में जाने से पहले थोड़े से बेसिक्स ब्रश अप कर लेते हैं. एज वी नो, ब्रॉन्स्टेड बेस एक ऐसी स्पीशीज होती है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है. तो ब्रॉन्स्टेड एसिड प्रोटॉन डोनर है. लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है. तो लुईस बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. हम डील करेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड्स के साथ. प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के बाद जो स्पीशीज बचती है उसे कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है. कहने का मतलब, अगर Hb कोई एसिड है तो प्रोटॉन निकलने के बाद इस B- को कॉन्जुगेट बेस कहेंगे. एंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentration of H plus and B- to that of concentration of Hb. और हमें पता है, lower the value of pKa, lower the pH, stronger is that acid. और हमारी पूरी कहानी रिवॉल्व करेगी इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के आसपास. मतलब जितना ज्यादा ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, उतना ज्यादा ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और उतना ही ज्यादा हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा. So let's talk about the cardio bit by bit, where C stands for charge. Acidic strength increases with increasing positive charge on an atom. So if we look at OH negative, H2O and H3O plus, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर H3O plus पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है. It means if it loses one H plus, it will gain the stability. और अगर हम OH नेगेटिव को देखें तो ऑलरेडी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. इट मीन्स अगर ये एक और H प्लस लूज करता है तो ये नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो जाएगा. इट मीन्स H3O plus is willing to lose the H plus and that's why its acidic strength is more than the other two. Now coming to NH2 negative, NH3 and NH4 plus, तो सेम स्टोरी यहाँ पे भी रिपीट होगी. NH4 plus will be more acidic as compared to NH2 negative. Why? Because N के ऊपर यहाँ पर positive charge है. And A stands for the role of atom. तो जिस एटम पे नेगेटिव आएगा जब H plus एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी की बात करनी है. Across the period, acidic strength increases with increase in electronegativity. अगर हम CH4, NH3, H2O और HF को कंपेयर करें तो H प्लस एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद कार्बन पे नेगेटिव आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और फ्लोरीन पे नेगेटिव आएगा. फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पे नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल है एंड मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ. हैविंग सेड दैट, down the group, acidic strength increases with increase in size of the atom जिसपे नेगेटिव आ रहा है. HF, HCl, HBr और HI को कंपेयर करें तो HF के केस में नेगेटिव आएगा F पे,
HCl के केस में आएगा Cl पे, HBr के केस में Br पे और HI के केस में I पे. एंड I being the largest in size, उस पे नेगेटिव ज्यादा डिफ्यूज हो सकता है, ज्यादा डिस्पर्स होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा. Therefore HI is most acidic. R stands for resonance. और अगर हम मिथेनॉल एंड फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, here we need to compare the stability of their conjugate bases. मिथेनॉल का conjugate base है मिथॉक्साइड आयन, जबकि फिनोल का conjugate base है फिनॉक्साइड आयन. Now the conjugate base of phenol is being resonance stabilized, and that's why it is more stable than the conjugate base of methanol, and that's why phenol is more acidic than methanol. Let's come to another example. यहाँ पर हम मिथेनॉल को कंपेयर करेंगे एसिटिक एसिड के साथ. एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस एसीटेट आयन है, एंड एसीटेट आयन इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. सो अगेन एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक than methanol. And Di stand for dipole induction. So let's compare the acidic strength of propanoic acid, acetic acid and formic acid. And after the abstraction of proton, conjugate base of propanoic acid, that is propanoid ion में ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, एसिटेट आयन में भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा और फॉर्मेट आयन पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा. ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन प्रोपेनोइट आयन में भी जैसा होगा वैसा ही एसिटेट आयन में होगा और वैसा ही फॉर्मेट आयन में होगा. दैट इज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स. तो अब हमें कुछ और फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, एंड दैट फैक्टर विल बी द इंडक्टिव इफेक्ट. द इथाइल ग्रुप प्रेजेंट हियर shows a plus I effect. The methyl group present here also shows a plus I effect. Both are donating effects, but the plus I effect of ethyl group is slightly greater than that of the methyl group. So ethyl group will destabilize the conjugate base more than the methyl group, and therefore the acidic strength will be most for formic acid, followed by acetic acid, and it will be least for propanoic acid. And comparing the acidic strength of acetic acid, cyanoacetic acid and nitroacetic acid, conjugate base की stability देखी जाए तो अब डिसाइडिंग फैक्टर होगा इंडक्टिव इफेक्ट. मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट देखा जाएगा, while cyano as well as nitro group both have minus I effect. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, while इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं. सो नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ साइनो ग्रुप. देयरफॉर nitroacetic acid will be most acidic and acetic acid will be least acidic out of these three. Now O stands for orbital. So due to sp hybridization in ethine, conjugate base of ethine will be the most stable, whereas due to sp3 hybridization, conjugate base of ethane will be the least stable. तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इथाइन इज द मोस्ट एसिडिक वन अमंग ऑल ऑफ देम. इफ वी कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इथेन, बेंजीन और इथाइन, तो यहाँ पर भी हम ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. इन दिस वे इथाइन इज द मोस्ट एसिडिक वन. नाउ इफ वी कंपेयर अमीन, इमीन एंड नाइट्रिलियम आयन, again the same concept will be applied, according to which nitrilium ion will be the most acidic. Ma'am, as per the pKa value, H2S is more acidic than H2O. So let's apply our cardio trick to explain this order. अगर हम H2S और H2O दोनों से ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करें
तो कॉन्जुगेट बेसेस होंगे HS माइनस एंड HO माइनस रिस्पेक्टिवली. नाउ लुकिंग एट द एटम्स जिन पे नेगेटिव चार्ज है, एक है सल्फर, एक है ऑक्सीजन, एंड डाउन द ग्रुप साइज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर. तो नेगेटिव ऑन सल्फर is much more stable than negative on oxygen and therefore H2S is more acidic than H2O. पर मैम अगर वाटर की जगह एसिटिक एसिड ले लो तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है. तो मैम एसिटिक एसिड के केस में यहाँ पे एक एड ऑन फैक्टर भी तो है, दैट इज रेजोनेंस. एसिटिक एसिड के केस में आपका एसिटेट आयन जो कि इसका कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. Now if we compare phenol and acetic acid, then ma'am, तो मैम यहाँ पे भी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे. फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस होता है फिनॉक्साइड आयन एंड एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है एसिटेट आयन. अगर हम उनको देखें तो फिनॉक्साइड आयन में भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे है और एसिटेट आयन में भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, तो सेम एटम पे है, दोनों में ही रेजोनेंस है. तो स्टूडेंट्स टेंड टू मेक अ मिस्टेक कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. उस हिसाब से वो फिनॉक्साइड को ज्यादा स्टेबल बोल देते हैं. बट एक माइन्यूट सी चीज है जो वो मिस कर देते हैं और वो एक ब्लंडर बन जाता है. यहाँ पे फिनॉक्साइड में रेजोनेंस से नेगेटिव ऑक्सीजन से कार्बन एटम पे आ रहा है, वाइल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं एसिटेट आयन के जिसमें नेगेटिव ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे ही आ रहा है. एंड बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है. तो जिस ऑर्डर में कार्डियोनिमोनिक में A और R आ रहे हैं उसी ऑर्डर में हमें उसको याद भी रखना चाहिए कि एटम की स्टेबिलिटी विल ऑलवेज डोमिनेट एंड देयरफॉर एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल. मैम इंस्टेड ऑफ फिनॉल इफ वी टेक पिक्रिक एसिड और हम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को एसिटिक एसिड से कंपेयर करें तो मैम एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है एसिटेट आयन और पिक्रिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है पिक्रेट आयन. पिक्रेट आयन में ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है जब वो डीलोकलाइज होगा तो वो तीनों नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन तक जाएगा. इट मींस more delocalization of the negative charge और वो भी ऑक्सीजन के ऊपर. That's why conjugate base of picric acid is more stable. So the acidic strength of picric acid is much more than the acidic strength of acetic acid. मैम नाइट्रो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, बट आई एम थिंकिंग अबाउट नाइट्रो एसिटिक एसिड एंड पिक्रिक एसिड. व्हाट अबाउट देम? सो लेट्स जस्ट कंपेयर देयर कॉन्जुगेट बेसेस एज वेल. नाइट्रो एसिटेट आयन में नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, पिक्रेट आयन में भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे है एंड बोथ आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. एंड एज यू डिस्कस्ड अर्लियर पिक्रेट आयन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा है. अब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इस नाइट्रो ग्रुप को देख के बिकॉज दे विल फील दैट इसका माइनस आई इफेक्ट भी तो ऑपरेट कर रहा है. बट इफ वी लुक एट द पिक्रेट आयन, यहाँ पे भी तो 3 नाइट्रो ग्रुप्स हैं जिनका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है. तो स्टिल पिक्रेट आयन इज मच मोर स्टेबल देन नाइट्रो एसिटेट आयन and picric acid is a stronger acid than nitroacetic acid. So here we can say जिस ऑर्डर में कार्डियोनिमोनिक में AR DI प्रेजेंट हैं उसी ऑर्डर में उनकी प्रायोरिटी भी होगी. Okay, so acidic strength is sorted, but what about basic strength, ma'am? Patience is the key, my friend. Patience is the key. Wait for our next video for the order of basic strength and previous year's NEET questions. Till then, don't forget your cardio. Thank you.